Hello, everyone, and welcome to the podcast of Real Estate Secrets with Dipasha. And today I have a very special guest. ये हिंदुस्तान के बड़े मशहूर आर्किटेक्ट थे, उसमें अध्यक्ष थे. We are developing Telankedi Garden as a lotus garden. Habib Khan has already planned the design for that. Which is architect Habib Khan. And I've invited a very important person who plays an important role in your housing and your designing of your house or any property you buy. He is a renowned architect who is working in this field with more than 20 years of experience. He is the president of Priyadarshini Institute. He is also the president of Tilak Institute of Mumbai. He has won multiple awards in the architectural field. He was awarded with Orange City Achievers Award. He has also been awarded with an award which is promoted by Prince Charles, INTABU, which is given to honorable architects. He is also the former president of the Council of Architects. He is a multi-talented person who believes that he should be participating in every field that he's working in or every opportunity he gets. He's also a songwriter, a teacher, a lecturer, and a promoter of good architecture. So let us meet him in this podcast. So the first question that I would like to ask you is, why did you decide to become an architect? Like, what was your thought? I had no idea what architecture was, and I was good in hand sketching and things like that, painting and sketching and all. So, and I was totally disinterested in physics, chemistry and mathematics. तो हमारे आर्ट टीचर थे, उन्होंने कहा कि यार ये तू आर्किटेक्चर कर ले. तो आई डिडंट नो व्हाट आर्किटेक्चर वाज. देन आई ग्रेजुअली, एंड उस टाइम पे नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था. तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिली, फिर मालूम चला कि ये बिल्डिंग्स जो बनती हैं वो आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं. तो दैट्स हाउ आई केम टू आर्किटेक्चर. अदरवाइज मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था आर्किटेक्चर. So now do you love your work? Oh, yes, absolutely. I love my work. Architecture is my first love. Second and third love. उसके बाद में सभी लोग आते हैं. That's nice. So sir, as you said that architecture is your first love, so उसके according, what are the trends that were first gaining momentum, and now which trends do you see in architecture that are gaining momentum right now? See, trends are very, it's like a fashion. Yeah. तो आर्किटेक्चर में ट्रेंड्स पर से नहीं होता है मतलब. एंड फंडामेंटली आर्किटेक्चर जो है समथिंग मोर डीप एंड मोर इंटेंस. इट इज समथिंग टू विद द स्पेसेस, द लाइट, द वेंटिलेशन, द quality of spaces, the temperature of a space, and the enclosure that goes around, what it conveys. It's a non-verbal communication. So, not necessarily trend होता है. Trend जो होता है वो बहुत temporary होता है. Fashion में होता है trend, interior design में trend होता है. Architecture में trend थोड़ा difficult होता है to define. And वो होता है, वो बहुत temporary होता है. It's a very superficial thing. Trend is a very superficial thing. Architecture is very deep and very intense. So it cannot be called as a trend. But right now, like, don't you think कि जैसे पहले घर बनते थे, like in the old times, you know, everything was integrated, water, light, and everything was integrated in that. अभी आपको मतलब according to my personal opinion ऐसा लगता है कि हम लोग एक square boxes बना रहे हैं. Precisely. आपने बहुत अच्छा मतलब एक point निकाला है. Architecture is no longer contextual. By that I mean architecture should belong to the land where it is being built. Architecture should belong to the people for whom it is being built. And architecture should respond to climate, culture, context, geography, geology, and everything that goes, with the human being, with the living of a human being. Architecture has to respond to that. And architecture in the past always responded to this. Yeah. अब आजकल क्या हो गया कि आजकल तो एक जैसे आपने कहा ट्रेंड एंड फैशन बन गया है. एक बॉक्स हो गया, उसके आके एक स्किन लगा दी आपने, ससुराल गेंदा फूल वाला हिसाब हो गया. मतलब सैया हैं, व्यापारी चले हैं परदेश, सूरतिया निहारो. तो परदेश की तरफ देख रहे हैं. वी आर लुकिंग, कॉपिंग द वेस्टर्न थॉट प्रोसेस इनटू आवर इंडियन सीन एंड इंडियन सिनेरियो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट. देखिए फंडामेंटल डिफरेंस है वेस्टर्न आर्किटेक्चर में और इंडियन आर्किटेक्चर में, और वो डिफरेंस ये है कि दे हैव टू ब्रिंग द सन इनसाइड, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट की कमी है. Like most of the Western world, yes. यहाँ पे architecture it's cold. It's cold and very cloudy and misty and all. So they have to bring the sun inside. Well, we have to keep the sun out because हमारे यहाँ sun इतना abundance में है.
और हम ऐसी बिल्डिंग्स की डिजाइन कॉपी कर रहे हैं जो बेस्ड ऑन अ टोटली ऑपोजिट प्रिंसिपल, Yeah. है ना, ऑफ ब्रिंगिंग द सन इन एंड वी वांट टू ब्रिंग द सन आउट। आप ग्लास की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आपने चौरस बॉक्स बना दिया, ग्लास के अलग अलग फसाड डिजाइन करके लगा दिया, पूरा सन अंदर आ रहा है, क्लियर अंदर आ रही है, हीट आ रही है, उसको आप मिटिगेट करने के लिए ब्लाइंड्स लगा रहे हैं जो एक्सपेंसिव हैं, फिर उसको आप एयर कंडीशनिंग का लोड बढ़ा रहे हैं। तो ये दिस इज व्हाट आई कॉल अ फूलिश ट्रेंड व्हिच इज बीइंग कॉपीड बिकॉज़ इट इज वेस्टर्न। जैसे मिनिमलिज्म है, वो उसके मिनिमलिज्म ऊपर तो हाँ एक चीज हो, इट्स अ थॉट, इट्स अ इज्म। जैसे बहुत से इज्म होते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, डीकंस्ट्रक्टिविज्म, ब्रूटलिज्म और minimalism is also. So that's a ism in architecture where based on these philosophies the design is based. Isms के ऊपर। But then उसके वजह से अपना कल्चरल जो एस्पेक्ट होता है, इंटीग्रेशन इन डिजाइन, लाइक वी इंटीग्रेट कल्चर आल्सो इन डिजाइन, तो वो मिस आउट नहीं होता उसमें? नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट चीजें हैं। इज्म जो होता है वो कोई भी कल्चर में फिट होता है, कोई भी ट्रेडिशन में, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में फिट होगा, है ना। मिनिमलिज्म जैसे इज अ थॉट प्रोसेस, जैसे आप कह रही हैं मिनिमलिज्म इज अ थॉट प्रोसेस। नाउ दिस थॉट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बीइंग लेस इज मोर, या है ना। तो इसका कोई कल्चर से, कोई सिटी से, कोई शहर से, कंट्री से कोई लेना देना नहीं है ना। ये एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं जो कि इज्म को इफेक्ट करते हैं, जो कि ऐसा दो इंटररिलेटेड काम करते हैं। इफ यू आर वर्किंग इन अ मिनिमलिस्ट मोड, then what you will do is you will use the philosophy of minimalism and contextualize it to your region where you're building, people you're building. अब आप राजस्थान में एक बिल्डिंग बनाते हो, एक कश्मीर में बिल्डिंग बनाते हो, केरला में बनाते हो, और सब एक जैसी बिल्डिंग बनाओगे तो कैसे होगा? क्लाइमेट अलग है, सबका हमारा कस्ट्यूम अलग है, हमारे खाने का खाना क्यूजीन अलग है, सब एवरीथिंग इज डिफरेंट, एंड इट इज बेस्ड ऑन द क्लाइमेट एंड व्हाट इज अवेलेबल इन योर, है ना। चावल अगर आप बोलोगे राजस्थानी खाएंगे तो कैसे खाएंगे? मतलब चावल होते ही नहीं है वहाँ। अब तो खैर ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये होता है, बट बेसिकली इट्स नॉट द कोर फूड ऑफ राजस्थान फॉर डेजर्ट। सो उनकी जो कुजीन है, उनका जो फूड है, उसके हिसाब से बनाया है ना। तो ये वेरी वेरी रिलेवेंट पॉइंट आपने रेज किया है। So sir, what role do you think architecture plays in making Nagpur a smart city? See, architecture plays a pivotal role in all these schemes. Unfortunately, it is not recognized as a very pivotally important and critical element in the scheme of things. Uske reasons alag hai. But coming to smart city itself is a flawed concept. You know, if you go into the history of smart city, कि smart city का concept India को क्यों बेचा गया, या थर्ड वर्ल्ड, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को क्यों मार्केट किया गया, तो वो अलग ही हिस्ट्री है, लंबी चौड़ी, अपन कभी बाद में डिस्कस करेंगे। पर स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी से नहीं बनती। आप उसमें कैमरेज लगा दो, आप उसको हाईटेक बना दो, आप ये सब करो, उससे स्मार्ट सिटी बनती। स्मार्ट सिटी बनती है स्मार्ट सिटीजन से। तो जब तक हम सिटीजन्स को स्मार्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी सिटी स्मार्ट बनेगी नहीं। कितने भी लगा लो आप, कितना भी टेक्नोलॉजिकली इनोवेट कर लो, एडवांस कर लो उसको, इट विल नॉट बिकम अ स्मार्ट सिटी। And we have to understand one thing, that our citizens, जैसे भी इंदौर का एग्जांपल लगा, है ना, कितनी क्लीनेस्ट सिटी है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री। वो क्यों बनी? आप देखो, हर आदमी वहां पे अवेयर है, हर आदमी अवेयर है कि ये मेरी सिटी को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। तो जब तक आपके सिटीजन्स कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक सिटीजन स्मार्ट नहीं बनाएंगे, सिटी स्मार्ट बन ही नहीं सकती। तो आर्किटेक्चर का तो रोल ऑब्वियसली है, बिकॉज एवरीवेयर आर्किटेक्चर आता है। यू नो, भले ही आप गार्डन में जाओ, आप पब्लिक स्पेस में जाओ, अर्बन स्पेस में जाके बैठो, आप ऑफिस में जाओ, स्कूल में जाओ, घर में रहो, आर्किटेक्चर इज इन्वॉल्व्ड एवरीवेयर, एंड इट इज नीड फॉर द policy makers and decision makers to understand that the involvement of architects and architecture has to be there in smart city as well, and you know, any other scheme that you develop for the city. तो जैसे अभी ये स्मार्ट सिटी वाला टॉपिक है, वैसे ही हम लोग अगर ऑटोमेशन का बात लें, जैसे राइट नाउ वी आर गिविंग कमांड्स टू ऑल द मशीन्स कि यू नो डू दिस डू दैट, हमारा जो मैनुअल लेबर है वो बहुत कम हो गया है ह्यूमंस का। तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन है आपका कि इज इट गुड और लाइक यू विल बिकम अ पोटैटो इन सम इयर्स? काउच पोटैटो तो हम ऑलरेडी बन चुके हैं। देखिए, ये एक मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा विशियस काइंड ऑफ प्लानिंग है। आई डोंट नो whom by whom, but obviously by those who want to market their products and you know, sell their goods to you, they want you to become as useless as possible, as क्या कहते हैं उसको, vestigial as possible. Vestigial मालूम है आपको? These are vestigial organ.
जो कि एग्जिस्ट करता है वो काम नहीं काम होता नहीं उसको कुछ, है ना? तो वो हम चाहते हैं कि वी शुड बिकम वेस्टिजियल ह्यूमन बीइंग्स। हम कुछ काम ना करें, बैठे रहें, कमांड दे दें, ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन सिस्टम है। अरे यार जाके कर्टन तो हटा लो, अपने उठना तो उठ जाओ, अपने जाके टीवी तो बंद कर दो, मैनुअली अपने रिमोट कर रहे हो, एसी रिमोट, फैन रिमोट, लाइट रिमोट, एवरीथिंग इज रिमोट। सो वी आर बेसिकली किलिंग एंटायर सोसाइटी बाय डूइंग ऑल दिस। तो इन माई, अब क्या है, कोई क्लाइंट कहता है मुझे ऑटोमेशन करना तो कर दो, तो हम कर देते हैं। बट टू मी पर्सनली हमारा जो फिजिकल मूवमेंट था, हमारा जो एक्सरसाइजेस थे, Right. हमारा जो रूटीन था लाइफ का, इट वाज अ वेरी बैलेंस थिंग। हम खाना भी उसी तरह खाते थे, एक्टिविटी भी उसी, अब सब खत्म हो गया वो। एंड ऑटोमेशन और जितना जितना टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सब चीजों में, इट इज बेसिकली मेकिंग अस रिडंडेंट Yes, that is true. एंड आवर लाइफ स्पैन इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दैट। पहले Yes, 90 साल तक आदमी 100 साल तक जीता था, अभी 60-70 में खत्म हो जाता है। true. तो इट्स नॉट अ बून, इट्स अ बेन Right. टू आर्किटेक्चर। Do you think that architect, if we choose the wrong architect for a certain plan, so it can affect the, construction or the township? No, of course it does. Of course, yeah, of course it does. A good architect will deliver, Yes. and will deliver intangible benefits. Now, intangible benefits का मतलब जो दिखाई नहीं देते, है ना? कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो दिखाई देते हैं, Yeah. कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते। तो आर्किटेक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है, मोस्ट ऑफ इट इज इंटेंजिबल। इसका मतलब है कि आप जिस तरह की आपने लाइट दी है, जिस तरह की हवा दी है, जिस तरह की प्लानिंग की है, कन्वीनियंस प्लानिंग है, एक्टिविटी प्लानिंग है, आपको बिल्डिंग का लुक है, तो वो लुक दिखाई देता है भाई, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता अच्छा। पर बहुत से बेनिफिट्स एक आर्किटेक्ट ब्रिंग्स इन टू अ डिजाइन ऑफ अ हाउस which is not seen, which is not benefited. Basically, a good design by a good architect will alter the quality of life of its users. That is a very important point. Very important point. तो हम समझते नहीं है, as a common man, हम समझते नहीं है कि every space that you sit in, every space that you work in or sleep in has a quality, and that quality of that space affects the quality of your life, Yes. and that is what matters. That is what matters, and that's what a good design, and that's what a good architect does. Do you think that a consumer, while buying a property or a house for themselves, they should look into the architect as well? Yes, of course, yes. Yes. I'm an architect, so I will say that. But I mean, to be very honest, architect का involvement अगर आप plot ले रहे हैं तब से होना चाहिए, है ना? जब आपने सोचा कि मुझे घर बनाना है, तो मैंने घर कैसा बनाना है, मेरा घर कैसा हो, मेरे घर की कल्पना कैसी, और फिर उसकी अभिकल्पना और परिकल्पना कैसी, ये इसका का आर्किटेक्ट करना है ना? तो और अगर आप रेडीमेड फ्लैट ले रहे हैं तो भी आप आर्किटेक्ट को दिखाइए इसमें हवा पानी से बराबर है कि नहीं, हाइट्स बराबर है, फिनिशिंग ठीक है कि नहीं, है ना, कैसा घर है, कैसा दिखता है, ऑल दिस थिंग आर्किटेक्ट्स का सपोर्ट। No, so that is a good point. What people do is कि when they buy a certain flat in a township or a ready-made flat, they do not consult architects. They consult interior designers only, mostly, as far as I've seen. But this is a good point that people can integrate in their regular practices of buying a house. आप इंटीरियर डिजाइनर से करवा दीजिए, सेम प्रोफेशन है, 19-20 है, वो नाम का है, मतलब इंटीरियर डिजाइनर्स घर नहीं बनाते, बिल्डिंग नहीं बनाते, स्ट्रक्चर्स नहीं करते, इंटीरियर करते हैं उसके अंदर, आर्किटेक्ट्स भी इंटीरियर करते हैं। तो आप कोई भी कंसल्टेंट को, कोई भी प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करिए उसमें, कि वो आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस देगा एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। ऐसा कौन सा उसकी, मतलब आप करोड़ों का घर लोगे, उसके लाखों की फी भी नहीं बनेगी, तो देने में क्या इशू है, आपको उसका बेनिफिट मिलता है, वो इंटेंजिबल बेनिफिट जो मैंने आपको बात की, वो इंटेंजिबल बेनिफिट मिलता है। कि हमको एक बेडरूम डिजाइन करना है, अब वो बेडरूम आप डिजाइन कैसे करेंगे? अगर आप उसको ये सोच के डिजाइन करेंगे कि मेरे को एक बेडरूम बनाना है, तो वो प्रॉपर डिजाइन नहीं होगी। प्रॉपर डिजाइन जब होगी जब आप उसको एक एक्टिविटी करके ट्रीट करेंगे। तो बेडरूम में क्या एक्टिविटी होती है? स्लीपिंग, है ना, प्राइमरी एक्टिविटी स्लीपिंग, रेस्टिंग, रिलैक्सिंग। हम उसको अगर ये स्लीपिंग, रिलैक्सिंग, रेस्टिंग एक्टिविटी अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमारी डिजाइन का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, बशर्ते हम उसको एक बेडरूम बनाएंगे, है ना। तो उसमें जो आर्किटेक्चरल इनपुट आएगा, है ना, कि हमको लाइट कितनी चाहिए, कौन से टाइम पे लाइट चाहिए, कहाँ से हवा चाहिए, है ना, तो ये सब बातें एक्टिविटी के साथ आती है, रूम के साथ नहीं आती, है ना। अब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा शायद व्यूअर्स के लिए, बट जैसे फॉर एग्जांपल हम एंटर करते हैं डोर में,
मेन डोर है हमारा, मेन डोर में एंटर करते हैं इनसाइड, तो हम उसको अगर मेन डोर या एंट्रेंस डोर करके अगर हम ट्रीट करेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। या खिड़की है, जैसे खिड़की को अगर हम डिजाइन करेंगे कि भाई ये खिड़की एक फंक्शनल एलिमेंट है जिसमें से लाइट आ रही है और हवा आ रही है ना, बट खिड़की एक एलिमेंट है जो कि इंटरफेस है बाहर का और अंदर का, इनसाइड एंड आउटसाइड का इंटरफेस है ना, तो वो खिड़की मुझे अंदर के वर्ल्ड से बाहर के वर्ल्ड को कनेक्ट कर रही है। अगर हम उसको ऐसे देखेंगे ना तो लाइटिंग वेंटिलेशन उसका ऑटोमेटिकली उसका एक पार्ट बन जाएगा। इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ, थोड़ा टेक्निकल है बट दिस इज हाउ वी डिजाइन। No, you are like telling so much concepts कि वो we can like imagine it, and we don't think in general life, we don't think in these perspectives generally, because we are living in that space and we are like so accommodated to that we don't think in this way that you know a window is. जो आपने बात की था कि भाई वेदर आर्किटेक्ट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए घर लेने में। अब एज अ कॉमन मैन अगर आप घर लेने जाते हैं, आप सीढ़ी देखते हैं, स्टेयरकेस, तो स्टेयरकेस आपका बेसिक फंक्शन क्या है, ये पॉइंट से वो पॉइंट तक पहुंचाना या यहाँ से वहां ऊपर चढ़ाना है ना। बट अगर आप उसको ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मैं जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ रही हूँ ऊपर, है ना, मेरा आई लेवल बदलता जा रहा है ना। अब आप ये 0 लेवल पे खड़े हो, धीरे 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 आप 7 फुट पे चले गए, फिर 7 से फिर आप 14 पे चले गए, तो आपका आई लेवल बदल गया। तो जब आई लेवल बदला, आपका आई लेवल मतलब आंखों का जो लेवल से हम जो देखते हैं, हमारा जो दृश्य देखते हैं, तो वो हमारा चेंज हो रहा है। जैसे जैसे चेंज हो रहा है आपका व्यू भी चेंज हो रहा है। आपको जो 0 लेवल से जो व्यू दिख रहा था और 14 फुट से जो लेवल दिख रहा है उसमें व्यू बदल चुका है ना। तो हमारा व्यू बदल चुका है। अगर हम उसको वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो आप उसको जज कर पाएंगे कि ये सीढ़ी मेरे घर में ठीक से बनी है कि नहीं बनी है, या ऐसी होनी चाहिए थी सीढ़ी, यू नो, ऐसा दैट काइंड ऑफ थिंग। That is true. And with your expertise, now I'm like imagining it, because you told the concept of the window. तो वो विंडो वाला विजन जो है ना, हम लोग तो जनरली विंडोज दिखते ही है, वी आर अराउंड विंडोज, बट देन कनेक्टिंग विद द आउटर वर्ल्ड एंड द इनर वर्ल्ड, दैट इज द कंसेप्ट दैट आर्किटेक्ट्स लुक इनटू. So that is a very good point that you said. So sir, Nagpur is a very growing city. So what do you think are the challenges for architects which are planning the urban development of the city? Nagpur is growing like any other city grows. And gradually in time to come it will fail, like every city has failed earlier. If you see, we are developing on a western model. अगर आप अमेरिकन सिटीज देखेंगे तो अमेरिकन सिटीज भी एक हद तक डेवलप हुई, then they became dead. Because ultimately, if the growth is not sustained, if the growth is not proper and in not the right direction, तो cities will fail ultimately. हमारे यहाँ भी क्या हो रहा है कि रूरल माइग्रेशन टू सिटीज, नागपुर में अगर आप देखेंगे तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन कितनी है और कितने माइग्रेंट्स आ रहे हैं रूरल एरिया से, जो हमारे नागपुर में आके सेटल होना चाह रहे हैं फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर इकोनॉमिक स्टेटस एंड बेटर लाइवलीहुड। इसके लिए वो लोग वहां से यहाँ पे आते हैं सिटीज में, रूरल माइग्रेशन जो विलेजेस से आते हैं। हम फंडामेंटल प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर रहे, हम अपने विलेजेस को एम्पावर नहीं कर रहे, हम अपने विलेजेस को इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं कर रहे, ताकि हम, कौन चाहेगा अपना घर छोड़ के शहर में जाके स्लम में रहे या ऐसे बैड लिविंग कंडीशन, कोई नहीं चाहेगा। तो हम कोशिश ये करें कि हम प्रॉब्लम्स को रूट के लेवल पे सॉल्व करें, क्योंकि सिटीज विल ऑलवेज फेल। देयर इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना भी दे लीजिए, कितनी मेट्रो बना लीजिए, कितनी बड़ी सड़कें बना लीजिए, फ्लाईओवर बना लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, सिटी एक्सपैंड होती जाएगी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होता जाएगा एवरी टाइम। तो ये हम नागपुर, मैं चाह रहा था कि जब नागपुर बहुत अच्छा शहर था, मतलब अभी भी अच्छा है, पर जो पुराना नागपुर था, जो मतलब कहीं से कहीं 5 मिनट में पहुंच जाओ, नो ट्रैफिक जैम्स, नो ट्रैफिक लाइट्स, है ना, आराम से ड्राइव कर रहे हैं कंफर्टेबली, इट वाज ग्रीन एंड ऑल, तो वैसा नागपुर वैसा ही रहे। पर वी आर ग्रोइंग एट द सेम वे लाइक अदर सिटीज हैव ग्रोन एंड फेल्ड, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी शॉर्ट पड़ता जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ माइग्रेशन होता रहेगा। माइग्रेशन इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, इट्स वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, रूरल माइग्रेशन जो है, तो रूरल माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। तो ये जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा माइग्रेशन का, हम क्यों नहीं ब्यूटीफुल सिटीज बना सकते? हमारा जो पुराना नागपुर था उसका फैब्रिक क्यों नहीं रिटेन कर पाए, और हम बाहर में क्यों नहीं ग्रोथ कर पाए, हम उसको रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाए, हम एग्जिस्टिंग एरियाज को क्यों कंजेस्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग एरियाज को क्यों बार बार ओवरलोड कर रहे हैं एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड। आप धंतोली देख लीजिए, रामदासपेट देख लीजिए, so many places if you see, they are failing in terms of the parking, in terms of the infrastructure, in the sewage system, water supply system, density of living per square kilometer. We are failing everywhere. So
क्रिटिसाइज करना पॉलिसी का मेरा मतलब नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम जो आगे वाली सिटीज को बनाएं, जो छोटे सिटीज हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसको हम एक अच्छे पैटर्न पे बनाएं। तो नागपुर इज एक्सप्लोडिंग। Yes. आने वाले 10 साल में probably it will become another Bangalore, or Bangalore will become New York and so on and on. तो आर्किटेक्ट्स का रोल तो खैर देखिए हर चीज आर्किटेक्ट बनाता है ना। सिटी प्लानिंग हो, अर्बन प्लानिंग हो, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो, रोड्स हो, बिल्डिंग्स ऑफ कोर्स हो, सारे कमर्शियल स्पेसेस ही हो, जो भी XYZ हो, बनाते तो आर्किटेक्ट्स ही हैं। सम फॉर्म और दी अदर, कुछ स्पेशलाइजेशन के साथ बनाते हैं, कुछ नॉन के साथ बनाते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में बनाते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में बनाते हैं। तो आर्किटेक्ट का रोल देखिए, जितना भी कंट्री में इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स है, तो उसमें से 48 to 50% इज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, Yes. एंड 48 to 50% में आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो आर्किटेक्ट्स का रोल तो फिनोमिनल है, वेरी गुड फ्यूचर दैट वी आर्किटेक्ट्स हैव इन नागपुर, नॉट ओनली नागपुर, इन द एंटायर कंट्री। तो सर जैसे हम अभी नागपुर की बात करते हैं, तो नागपुर के साथ नितिन गडकरी जी का नाम भी आता है, तो उनके साथ आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा कि बहुत मज़ा आया आपको उसमें काम करने के लिए, या बहुत इंटरेस्टिंग है? ये सारे प्रोजेक्ट्स, आई मीन वी आर वर्किंग विद हिम ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स, तो सारे प्रोजेक्ट्स में उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। उनका जो विजन है, उनका जो देखने का तरीका है, जो उनका टू अप्रोच प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन अ पर्टिकुलर वे इज वेरी फ्यूचरिस्टिक। उनका विजन भी बहुत फ्यूचरिस्टिक है। वो ऐसे एंगल से सोचते हैं जिससे हम कभी सोच नहीं पाते, कभी वी फेल इन थिंकिंग दैट द वे ही थिंक्स। एंड अभी मैं उनके साथ 20-25 साल से कर रहा हूँ काम, एंड एवरी प्रोजेक्ट इज अ प्लेजरेबल प्रोजेक्ट, बिकॉज कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ नए आइडियाज देते हैं वो, और वो आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करना अपनी डिजाइन्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज दैट हैपेंस टू एंड फ्रो। एंड समहाउ उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि उनके सपनों को मैं साकार कर सकता हूँ, पेपर पे लाके उसको खड़ा कर सकता हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है, माय प्लेजर एंड ऑनर दैट ही गिव्स मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक्नॉलेजेस इट आल्सो। तो बट उनका विजन जो है, उनका फॉर द सिटी, फॉर नागपुर, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो मेट्रो बनी है, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेट्रो यहाँ पे आनी चाहिए, मेट्रो की आवश्यकता है, परंतु उन्होंने बनाया मेट्रो, और अभी आज देखिए उसका क्या इफेक्ट है, पॉजिटिव यूज हो रहा है उसका सब जगह। तो ऐसे उनके बहुत से विजन्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं। अब पूरा आप देखिए पूरी कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने, फ्रॉम द वे ही हैज बिल्ट हिज हाईवेज, द वे ही हैज बिल्ट द नेटवर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया, कनेक्टिंग एवरीथिंग। हाँ, और इतना परफॉर्मेंस इन सच अ शॉर्ट टाइम, एंड वेरी इफेक्टिव वे ऑफ वर्किंग। तो उनसे ऐसी मतलब एनर्जी मिलती है कि वो एज में इतना मतलब काम करते हैं, तो उनको एनर्जी मिलती है, क्या कहते हैं उनसे एक प्रोत्साहन मिलता है कि यार हम भी कर सकते हैं। नागपुर के लिए तो बहुत किया उन्होंने। यस, दैट इज ट्रू। नागपुर का अभी अल्टीमेट जो डेवलपमेंट है, वो उनका ही हर एक चीज में पार्ट है बहुत बड़ा, एंड ही बिलीव्स इन यू in that part. No, that is my pleasure and honor. I was actually an honor to that he thinks so. Yes. What is your message to the young architects who are now coming into this field? Patience. Patience रखना सीखो। आज की जनरेशन जैसे जैसे मतलब जनरेशन पे जनरेशन आती जा रही है, they are becoming less and less attentive, less and less committed to time. And everything is a चुटकी में चाहिए मतलब जनरेशन को। They want everything quick, instant. It started with Maggi noodles, 2 मिनट में Maggi noodle बनते थे। It started with that. But the problem is, architecture as a profession, और related जितने भी professions हैं architecture से, ये marathon race है। This is not a 100-meter dash. 100-meter dash is very glamorous, fastest man and woman on earth. But marathon वाले कोई नाम ही नहीं जानता। Architectural practice and architectural profession is a profession which is absolutely slow, steady, and success comes in. We have to understand one thing, the younger generation, that we are not job seekers. We are job providers. The reason for that is there's a difference between profession and a business. आज वो जो line है, the thin line dividing profession and business is getting eroded. तो हम profession को भी business समझने लगे। All professionals are job providers, not job seekers. आज हम job seeking कर रहे हैं। हम कहते हैं यार वो
आर्किटेक्ट का प्लेसमेंट पे 15,000 रुपए मिल रहे हैं फ्रेशर को, और आईटी में जा रहा है 40 मिल रहे हैं उसको। तो ये वी आर नॉट जॉब सीकर्स, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, यू नो, these are CAs, chartered accountants. These are job providers, not job seekers. अगर आप जॉब सीकिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे जॉब प्रोवाइडिंग के उसमें कंपैरिजन में, तो ऑलवेज यू विल बी एट अ लॉस। तो आप पेशेंस रखिए और डटे रहिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कॉन्टेम्पररीज हैं, वो आर अर्निंग मे बी 4 times, 5 times than a fresher graduate. In 10 years time you will be employing 10 of them. So थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए आर्किटेक्ट में। When you start working, when you start establishing your practice, when you start beginning, there are pitfalls. बिना फेलियर के सक्सेस आती है और बिना मेहनत के सक्सेस आती है। तो वो मेहनत करो, डटे रहो, रैग्स टू रिचेस की कहानी बनाओ, अपनी स्टोरी बनाओ, और यू विल बी सक्सेसफुल, दैट इज श्योर। एंड इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, like I told you, 48 to 50% of the money that is being pumped into the country is in infrastructure sector, and infrastructure बिना architects के बन ही नहीं सकता। तो commitment and patience. As I met you and I got to know about you, so you are into like poems and you like writing, and आपने गाना भी लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले में। तो आप कोई ऐसा हमारे लिए कोई लाइन बोल सकते हैं लास्ट हमारे पॉडकास्ट के लिए, आपका फेवरेट? मेरी फेवरेट पोएम है जो मैं एंड करता हूँ अपने सारे प्रेजेंटेशन, और आप जब जाइए उससे पहले वो मेरे डोर पे लिखा हुआ है। मैं सब करना चाहता हूँ जिंदगी में, नाचना भी चाहता हूँ, गाना भी चाहता हूँ, सब करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी कंप्लीट इंडिविजुअल, इसलिए मैं सब करता हूँ। भले अच्छा ना करूँ, भले खराब करूँ, आई गिव माई बेस्ट। वेदर द आउटपुट इज गुड और नॉट इज फॉर पीपल टू जज, बट आई वांट टू डू एवरीथिंग। तो वो है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है बुनियाद हिलनी चाहिए। और हर सड़क पे, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है सोच बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में न सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। वाह। तो ये संदेश मेरा यंग क्राउड के लिए भी, यंग आर्किटेक्ट्स के लिए भी, आग लगाओ दिल में, और तुम्हारे दिल की जो आग रहेगी वो आग फैलेगी, अपने देश को बदलेगी, अपने फेलो सिटीजन्स को बदलेगी, और आपको भी सक्सेस देगी, आपकी कंट्री को भी सक्सेस देगी। बिल्कुल। सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर, एंड थैंक यू सो मच कि आज आपने अपना टाइम दिया, वैल्यूएबल टाइम, और थोड़ा सा आपने हमारे लिए समय निकाला, एंड यू डिडंट लाइक क्वेश्चन मी कि क्या पॉडकास्ट में रहेगा क्या नहीं रहेगा, कितने फॉलोअर्स है नहीं है, यू डिडंट लाइक think about that, but you agreed on meeting me, so thank you so much. I'm very glad that I met you and I got to know so much about things, and you changed my perspective about, you know, architecture and about designs, so thanks a lot for joining. See, अब तो आपका हो गया, बट ये कैसा है कि जो हमारी भारतीय सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी जिसे भारत जिसे कहते हैं और भारतीयता कहते हैं ना, ये 4-5 पिलर्स पे एस्टेब्लिश्ड है। और जो धर्म है, सनातन धर्म की बात करते हैं, भारत सनातन धर्म की बात करते हैं, तो धर्म क्या है ना? धर्म 2 चीजों से बनता है। धर्म कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म नहीं है। धर्म इज व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम सोसाइटी, यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी, एंड यू हैव टू डू इट इन अ वेरी एथिकल एंड अ वेरी कंसेंशियस वे। तो ये हमारा धर्म है, ये हमारा भारतीयता, भारतीय सनातन धर्म का पिलर है। तो मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ कि जो मुझे सोसाइटी ने दिया है, जितना भी दिया है, कम ज्यादा कोई शिकायत नहीं है, और ना उसमें कोई किसी से गिला है ना। तो जितना भी दिया बहुत बहुत दिया है, ऊपर वाले का शुक्र है कि मतलब जो भी दिया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं वापस दूं। अगर आज इस पॉडकास्ट से किसी का कुछ भला होता है, किसी को कुछ पॉजिटिविटी आती है, किसी को कुछ दिमाग में एक थॉट प्रोसेस जनरेट होता है, एक सीड बोया जाता है, एक बीज बोया जाता है, मोर देन इनफ है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। मेरा धर्म ये है कि आई हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी। जैसे आपने बोला, मैंने मान लिया, ठीक है, क्या होगा, 1 घंटा जाएगा, 2 घंटा जाएगा, देखिए अब आप देख रहे हो मैं कितने दौड़ते हुए आया हूँ, कितने मतलब चल रहा है, बट ये मेरा धर्म निभा रहा हूँ।
Thank you so much. This is also a very nice message. I don't know, you got taken after.